Good morning students, I am Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to do the rest part of the narration. Okay, so in the first video, in the first two videos, in the first video we have done about the introduction of the narration, okay, and in the second video we have done just this change, present indefinite change into past indefinite, that we have done that V1 we have to change V1 into V2 and do or does to did, okay, that we have done. And so in this part or in today's video we are going to read about the further changes that we do while changing direct speech to indirect speech. Okay, so in this we have done. Now we are doing this. What is that? Present continuous is changed into past continuous. It means is MR are changed into was were. Okay. For example, if I write here, I said to her, you are having your coffee. Okay, I said to her, you are having your coffee. Okay, कि तुम अपनी कॉफी ले रहे हो. So in this, verb is helping verb is MR, okay, and helping verb having ing, that here it's for just doing action. Okay, so how do we change it? So just first we have to see क्या हमें देखना है कि हमारा सेंटेंस क्या है. हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. ओके, so according to that we change said to into told. Okay, then what further change we are doing here? Then we just remove this commas and inverted commas and use conjunction. What is that? Okay, that. Okay, then I told you that if we have I and if we have you, so I we change according to the speaker and you we change according to the listener. Okay, so here who is the speaker? I is the speaker and her is the listener. तो यहाँ पर क्या आया है हमारा? you, it means you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? you चेंज होगा her के अकॉर्डिंग. तो इसको हम क्या लिख देंगे? I told her that. अब her क्या है? गर्ल के लिए सब्जेक्ट कौन सा यूज होता है? she सब्जेक्ट प्रोनाउन she यूज होता है. so she और आर यहाँ पे आपको बताया आर वर्ब में चेंज हो जाएगा. so वर्ब. ओके, आपका सेंटेंस हो गया. I told her that she was having and your क्या हो जाएगा? you था तो your आ गया. you का आपका जो एडजेक्टिव है you के लिए your होता है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव. एंड she के लिए होगा her. she were having her coffee. Okay, she were having her coffee. So we have to do like this. Understood? So next we have this present perfect change into past perfect. Okay, so in present perfect we use has and have. So our has and have is changed into had में change हो जाएगा. So like we have a sentence like that. She said to me
she said to me, I have written a letter. I have written a letter. Okay, यहाँ हम चाहे तो यहाँ नोट भी लगा सकते हैं. I have not written a letter. ठीक है. So yes, change it. How do we change it? Yes, so first we have to see what that our dialogue is assertive और interrogative. यहाँ पर हमें पता है assertive है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है. मीन्स एक सिंपल सेंटेंस है. सो सिंपल सेंटेंस है. सो said to हमारा चेंज होगा किसमें? told में. ओके, said to को हटाकर हम क्या यूज कर देंगे? told. ओके, देन he told me ये हटा देंगे. यहाँ पर हम यूज करेंगे that. he told me that. अब देखो I है. अब I किसके लिए है? she के लिए. she के लिए तो क्या आ जाएगा? that she. ओके, have को चेंज करना है had में. had. that she had written a letter. ओके, she told me that she had written a letter. ओके, यदि यहाँ पे not होता I have not written a letter, तो यहाँ पर भी not had के साथ आ जाता. she had not written a letter. Understood? I hope you understand that. And now the next, what? That present perfect continuous is changed into past perfect continuous. कि present perfect change होगा हमारा past perfect continuous में. Okay, and in present perfect continuous we use has and have, and that has and have we change into had, like we have seen in this. Okay, for example, I said to him, you have been sleeping for 10 hours. क्या हमने कहा? भाई तुम 10 घंटों से सो रहे थे. या चलिए इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में ले लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए. ठीक है. I said to him, क्या हमने कहा उसको? ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लगाते हैं. Have you, और इधर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा hours के बाद. I said to him, have you been sleeping for 10 hours? भाई क्या तुम 10 घंटे से सो रहे हो? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. सो अब क्या है देखिए, असर्टिव डिक्लेरेटिव नहीं है, क्या है? क्वेश्चन है ये सेंटेंस हमारा. तो क्वेश्चन है तो हमारा said to जो है वो चेंज होगा किस में? asked में. वेरी गुड, asked में. सो I asked him. अब क्या आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी ये भी चेंज होगा हमारा. said to asked में चेंज होगा. और कंजक्शन कौन सा लगेगा? अब कंजक्शन that नहीं लगेगा. अब कंजक्शन हमारा लगेगा if या फिर whether, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. I asked him if. और अब ये जो क्वेश्चन फॉर्म है, ये जो क्वेश्चन में हमने लिखा है, इसको हम रिवर्स कर देंगे. इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे. एंड यू किसके लिए है? लिसनर के लिए. लिसनर कौन है? हिम. तो क्या आ जाएगा? ही. इफ ही और हैव था हमारा, हैव चेंज हो जाएगा हैड में. इफ ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा और फुल स्टॉप यहाँ पर रह जाएगा. ठीक है. सो ये हमारा बन गया I asked him if he had been sleeping for 10 hours. Understood? It's a simple thing. If you have a question, then just use
or weather. Okay, and said to, your said to changed into, said to आपका चेंज हो जाएगा asked में, यदि आपका क्वेश्चन है तो। इनको साथ के साथ आपको लर्न करते चले जाना है, अदरवाइज फिर क्योंकि आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, then you have a problem in understanding. So I suggest you to learn it continuously with the after the lesson. Okay, so this is over for present tense. Okay, so present tense is over here. So now we are going to start past tense. Past tense. In past tense there are only two sentences, two tenses that will change. What are these sentences? Past indefinite, your past indefinite, past indefinite आपका चेंज होगा past perfect में, इसमें चेंज होगा past perfect में. It means इसमें हम V2 यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं, एंड नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो तो डिड यूज करते हैं. ठीक है, सो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, हेड में. हेड में नेगेटिव है, डिड नॉट है, हैड नॉट यूज कर दो. V2 है, ओनली V2 में भी हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, आपका जो V2 है वो V3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द रूल दैट यू हैव टू follow. Okay, so let's take a sentence for it. For example, he said to us, he said to us, what he said to us, they did not arrest the thief. Okay, that they did not arrest the thief. अब देखो यहाँ पर did not है, okay, did not arrest है, so हम क्या करेंगे, क्या चेंज होगा. सबसे पहले क्या देखना है कि डायलॉग आपका सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, तो said to आपका चेंज हो जाएगा told में. He told us, ये हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास, कंजक्शन, सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगेगा. He told us that. अब देखिए they, he आपका स्पीकर है, us आपका लिसनर है. ठीक है, बट यहाँ पे they कौन है, they आपका है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. ओके, अब देखिए ये यहाँ किसके बारे में कहा है कि उसने हमसे कहा, उसने हमसे कहा, किसी तीसरे के बारे में यहाँ पर बात हुई है. तो जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही यहाँ पर लिखा जाता है. ठीक है, यदि आई या यू होता तो आई चेंज होता, ही के अकॉर्डिंग यू चेंज होता, वी अस के अकॉर्डिंग. ओके, सो यहाँ पर दे आपका दे ही रहेगा. He told us that they, अब मेजर चेंज क्या करना है, did not arrest को हमें चेंज करना है had प्लस V3 में, so had arrested, third form of arrest is arrested. They had, not, they hadn't, they had not arrested the thief. ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया. He told us that they had not arrested the thief. Understood? Okay. If our question is that okay, यदि यहाँ पर ये होता कि he said to us, उसने क्या कहा, when did you arrest the thief. अब उसने क्या किया है, हमने यहाँ पे
क्वेश्चन पूछ लिया है क्या, और क्वेश्चन किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है. ही सेड टू अस व्हेन डिड यू अरेस्ट द थीफ, व्हेन डिड यू अरेस्ट द थीफ. ओके, अब चेंज करते हुए क्या ध्यान देना है, डायलॉग हमारा किस में है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में. ठीक है, तो क्या चेंज हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर चेंज करेंगे टोल्ड को, हम चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में. ही आस्क्ड अस. ओके, और क्या चेंज होगा, ये जो आपका व्हेन है, क्या मैंने कहा था, यदि WH फैमिली है यहाँ पर, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाट, ओके, व्हाई, सो वो एज अ कंजक्शन यहीं पर ही आ जाता है. तो अब यहाँ पे कोई और कंजक्शन हम नहीं लगाएंगे, दैट, वेदर, इफ, ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे. ठीक है, हम इसी को ही कंजक्शन में लेंगे. सो ही आस्क्ड अस व्हेन, अब ये यू किसके लिए आया है, यू लिसनर के लिए, अस के लिए. ओके, सो अस आपका है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पर हमें इसको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, वी. सो व्हेन वी, क्योंकि वहां पॉजिटिव है हमारा, सो ही आस्क्ड अस व्हेन वी हैड अरेस्टेड द thief. Okay, he asked us when we had arrested the thief. This is your answer. I hope you understand it. It's very simple. So now second thing that you have to do, and it's also a very simple thing. What is that? That is past continuous. Past continuous is changed into past perfect continuous. ठीक है, it means यहाँ पर हम had यूज करते हैं, had plus was were. यहाँ पर हम was were यूज करते हैं, was were V1 ing. ठीक है, दोनों में ing होता है क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है, तो was were यूज करते हैं. और यहाँ पर फिर ये was were आपका चेंज हो जाएगा had been में, had been. ओके, और V1 ing यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी आपका यूज होगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, I said to them we are singing a song. We are singing a song. Okay, so अब देखिए, I said to them we are singing a song. ठीक है, अब यहाँ देखिए I आपका क्या है, ओके, सबसे पहले क्या देखना है कि हम क्या कर रहे हैं. इट इज अवर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस है, तो आपका said to चेंज हो जाएगा told में. I told them, यहाँ पर हम that यूज करेंगे. I told them that, अब we स्पीकर के लिए. ठीक है, सो I और we क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पर्सन हैं आपके, ठीक है, तो ये we का we ही रहेगा. I told him that we, बट सॉरी, मैंने यहाँ R लगा दिया, आपका यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था. We were singing a song. ओके, सो आपका वर्ड जो है वो चेंज होगा had been में. सो क्या बन गया आपका सेंटेंस, I told them that we had been singing a song, और ये आपका हट जाएगा. अंडरस्टूड? I hope you understand it. Let's take another example if you do not understand it. So another example is Rakesh said to his friend
were you sleeping there? Were you sleeping there? ओके, सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, या आप यहाँ पे for भी लगा सकते हो. Were you sleeping there for 2 hours? Were you sleeping there for 2 hours? Or question mark. Okay. So because it's a question, so Rakesh said to हमारा चेंज हो जाएगा asked में. Rakesh asked his friend. अब कंजक्शन if, क्वेश्चन है ना, if Rakesh asked his friend if, अब देखो you किसके लिए है, his friend, ओके, his friend. तो हमें नहीं पता कि his friend यहाँ पे गर्ल है या बॉय है, ओके, सो कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पर he या she दोनों लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पर लिखेंगे Rakesh asked his friend if he had been sleeping for 2 hours. Okay, if he had been sleeping for 2 hours. ठीक है, जस्ट वही चेंज है, वर्ड आपने had been में चेंज किया और you आपका his friend के लिए है तो हमने यहाँ ही यूज कर दिया if he had been sleeping for 2 hours. So this is your answer. I hope you understand it. Now we'll take the next one, and what is that? It's a very simple thing, okay, and what is this? Like that is a future. In future tenses, which helping verb do we use? Yes, will and shall. Okay, so you have to just one thing, you have to change will and shall into would. इसको हम would में चेंज कर देंगे, will and shall को would में चेंज कर देंगे. ठीक है, so for example, अब जहां भी लगेगा, जैसे will shall है, would आ गया. अब हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं will या shall के साथ हम be यूज करते हैं, तो वहां पर आपका would be आ जाएगा. ठीक है, अब परफेक्ट में हम will या फिर shall के साथ have यूज करते हैं, सो यहाँ पर आपका would have आ जाएगा. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम will have been यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका would have been आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अंडरस्टूड? सो जस्ट वे, अब हमने क्या देखा, बी है तो बी है, वहां पर हैव है तो हैव लगाया है, उसके साथ बीन है तो हैव बीन हमने लगाया है. सो इट मीन्स हमने चेंज क्या किया है, हमने केवल विल शेल को, चाहे हमारे पास विल है या शेल है, उसको हमने वुड में चेंज किया है. बस यही हमें यहाँ पर करना है. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. यस, for example, Ravi said to them, will you go there? अब क्या कहा, रवि क्या कर रहा है, रवि ने क्वेश्चन पूछा है तो said to चेंज हो गया asked में. ठीक है, asked में चेंज हो गया है said to. सो रवि asked them, यहाँ पर क्या आ जाएगा, if, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा. रवि asked them if. अब देखो will आपका चेंज होगा would में, किसमें चेंज होगा, would में. will हटा दिया हमने, वुड में चेंज होगा. ठीक है,
अब यू को किस में चेंज करना है, हमने यू को किस में चेंज करना है, यू किसके लिए आया है, देम के लिए, देम के लिए, और देम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, दे। इफ दे वुड गो देयर, ये बन गया। रवि आस्क्ड देम इफ दे वुड गो देयर। अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आपको वजह में पढ़ के बता देती हूँ। शी सेड सुधीर शैल बी रीडिंग अ बुक, सुधीर शैल बी रीडिंग अ बुक, क्या बनेगा? अब देखो सेड है, सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, थर्ड पर्सन के लिए बात की गई है, तो जस्ट आ जाएगा सुधीर वुड बी रीडिंग अ बुक। ओके, सो जस्ट इसमें विल और शैल को आप उन्हें चेंज करना है, किसमें, इसमें चेंज करना है वुड में। ओके, सो नेक्स्ट विल टेक, ओके, नेक्स्ट आई वांट टू tell you about some changes that we do while changing direct to indirect. Okay, what are that changes? इसमें कुछ impressions ऐसे होते हैं, ठीक है, या हम कहें कुछ adverb हम change करते हैं जो कि डायरेक्ट में हमें नियरनेस बताता है, पर या जब हम उनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट हो जाएगा, तो उसको हमें एक डिस्टेंस हमें वहाँ पर शो करना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लाइक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, वी यूज देम इन डायरेक्ट स्पीच एंड दीज आर इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है नाउ, नाउ आपका चेंज हो जाता है देन में। ठीक है, यहीं पर ही कर देते हैं टू इनडायरेक्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ लेना। नाउ को देन में, देन दिस दैट में चेंज होता है, दिस पास की चीज़ों के लिए, दैट दूर की चीज़ों के लिए, देन दीज आपका चेंज होता है दोज में। ठीक है, दीज, दोज। ओके, देन वी हैव हेयर, हेयर आपका चेंज होगा देयर में, आपके पास देयर, देयर हम करेंगे वहां पर। ठीक है, देन आपका अगो, अगो आपका चेंज होगा बिफोर में, अगो आपका चेंज होगा बिफोर में। ठीक है, देन अच्छा यहाँ पर एक और लिख लो आप, जस्ट, जस्ट भी आपका देन में चेंज होता है, जस्ट और नाउ दोनों आपके देन में चेंज होते हैं। ठीक है, जस्ट नाउ चेंज होगा देन, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, अगो, बिफोर। ओके, ये कुछ चेंजेस हैं जो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे है आपके पास, टुडे आपका चेंज होगा दैट डे। ठीक है, दैट डे। टुनाइट आपका चेंज होगा दैट नाइट। ओके, देन टुमोरो, टू जहां पर है वो इसके साथ होगा, अब हम टुमोरो, टुमोरो, टुमोरो हमारा है तो उसको हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, टुमोरो, द नेक्स्ट डे। ओके, टुमोरो, द नेक्स्ट डे। देन यदि आपके पास येस्टरडे है, येस्टरडे, तो येस्टरडे आपका जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस होता है पहले वाला दिन, प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, द डे बिफोर। ओके, देन लास्ट, लास्ट के साथ आपके जितने भी वर्ड होंगे, लास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इट मीन्स हम पहले वाले साल की हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट के साथ आपका जितना भी होगा उसको आप द प्रीवियस में चेंज करेंगे, प्रीवियस। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका डे है, वीक है, जो भी है, ईयर है, इसके साथ हम वही लगा देंगे। लास्ट डे, द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर, इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से यदि आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ किया, नेक्स्ट डे ना आपका, चाहे नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, उसको आप चेंज करेंगे द फॉलोइंग में। द फॉलोइंग मीन्स आने वाला, द फॉलोइंग, ठीक है। देन द डे बिफोर यस्टरडे आपका चेंज होगा द डे बिफोर प्रीवियस डे। यस्टरडे प्रीवियस में होता है, बाकी सारा एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा। द डे आफ्टर टुमोरो आपका चेंज होगा, टुमोरो आपका है नेक्स्ट डे में, तो डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। ओके, सो इस तरह से यू हैव टू चेंज दीज expressions. Understood? So we have done till future tense here. In the next video we'll do sentences related to imperative sentences, okay, and exclamatory sentences. 2 sentences are left, and among these sentences the most important part is what? The questions, changing of the questions, imperative and exclamatory. Okay, but you should know the basics first. Basic हमें पता होंगी, then we are able to change. Okay, so keep going, keep practicing students, and firstly try to understand the change, try to understand this, okay, and then learn the rules. लर्न द रूल्स, क्योंकि जो वर्कशीट भी आपने की है उसमें मोस्टली आपके रॉन्ग हैं, तो ऐसे ही नहीं उसको करो, जस्ट इसको समझो कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह से हैं। आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर करे हैं उसको आप एक बार देखिए, समझिए रूल्स को, आफ्टर दैट डू दैट वर्कशीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।